اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے زبردست انداز میں بلڈوزر چلانے والی آتنکی سرکار کو، جی ہاں، کیونکہ بلڈوزر یک طرفہ چل رہا تھا نا، مولانا ارشد بندی سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ نے بلڈوزر کارروائی کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا، تو مولانا ارشد بندی نے بھی کہا کہ بلڈوزر صرف مسلمانوں کے دکان اور مکانوں پر، یعنی یک طرفہ کارروائیاں بلڈوزر کے ذریعے سے کی جا رہی تھی، یعنی حکومت بی جے پی بدماشی اور گھٹیا نیچ حرکت کر رہی تھی، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ خیر، سپریم کورٹ نے بڑی بات کہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی بھی جرم میں گھر پر بلڈوزر نہ چلائے جائیں، مندر ہو یا درگاہ، انہدامی کارروائی آخری آپشن پر ہو۔ پہلے ابھی کیا ہو رہا تھا، بس ڈائریکٹ پتھر یہاں سے دنگے فساد میں بہانہ بنا کر مسلمانوں کے دکانوں، مکانوں، درگاہوں، مسجدوں، مزاروں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن جمعیت علماء ہند کو اللہ، حضرت مولانا ارشد مدنی کو اللہ بہترین بدلہ دے، سپریم کورٹ کا رخ ادھر کیا، متوجہ کیا۔ سپریم کورٹ کا اب سخت رخ ہو گیا حکومتوں پر۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا پر کر دی سوالات کی سپریم کورٹ نے بوچھار۔ سپریم کورٹ نے بلڈوزر ایکشن کے سماعت کے دوران عوامی تحفظ کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی مذہبی ڈھانچے کو جو عوام کی زندگی میں رکاوٹ بنتا ہے ہٹایا جانا چاہیے۔ جسٹس گوئی نے کہا کہ ہم ایک سیکولر نظام میں ہیں، لہذا غیر قانونی تعمیرات پر کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے پیروکار کی ہو، لیکن مندر ہو یا درگاہ، انہدامی کارروائی آخری آپشن پر ہو۔ ناظرین، اپوزیشن لیڈر اور دبنگ رہنما کانگریس کے نیتا راہل گاندھی کے خلاف سمن جاری کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ناسک کی عدالت میں اگلی تاریخ کو پیش ہونا پڑے گا۔ نومبر 2022 میں ایک جلسے میں ویر ساورکر کے خلاف انہوں نے بولا تھا۔ مہاراشٹر کے ناسک ضلع کی ایک عدالت نے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو ہندوتوا کے نظریاتی ونائک دامودر ساورکر کے خلاف ان کے مبینہ قابل اعتراض ریمارکس کے لیے دائر حد کے عزت کے مقدمے میں سمن جاری کیا ہے، اور انہیں اب ناسک کی عدالت میں اگلی تاریخ کو پیش ہونا پڑے گا۔ ناظرین، حیدرآباد سے بڑی افسوسناک خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، مدرسے کی چھٹیاں، مدرسے کی تعطیلات میں نانا نواسے کو لانے گئے، اسی دوران حادثہ پیش آیا اور ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کچھ ایسی ہے کہ عادل آباد جامع مسجد کے صدر عبد المعز الدین اپنے افراد خاندان کے ساتھ پک اپ گاڑی میں نرمل ضلع کے بھینسا منڈل سے
अपने नवासे को मदरसे की तातीलात छुट्टियों पर लेने गए थे। वो आदिलाबाद वापस आ रहे थे कि यह हादसा पेश आया। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 लोगों ने तो जगह ही पर दम तोड़ दिया, बकिया 3 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जाबाक अफराद में आदिलाबाद जामे मस्जिद के सदर 65 साल अब्दुल मोइजुद्दीन, उनके दामाद 40 साल ख्वाजा मोइनुद्दीन, 11 साल मोहम्मद उस्मानुद्दीन, 13 साल फरीदुद्दीन और 5 साल मोहम्मद अली शामिल है, जबकि 38 साल आयशा आफरीन, 8 साल इकरा और 10 साल मोहम्मद साद शदीद जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, फिल्म अदाकार और 90 के दशक के मशहूर मारूफ बॉलीवुड अदाकार गोविंदा के हाथ से रिवाल्वर नीचे गिरी और गोली चल गई। पैर में गोली लगने से गोविंदा जख्मी हो गए, अस्पताल में दाखिल है, पुलिस तफ्तीश में मसरूफ है, कई सवालात पैदा हो गए हैं। अदाकार गोविंदा की रिवाल्वर से अचानक गोली चल गई और उसके पैर में लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या मंगल की सुबह 4:45 बजे उस वक्त पेश आया जब अदाकार कोलकाता जाने के लिए हवाई अड्डे के लिए रवाना हो रहे थे। जुहू में अपने अपार्टमेंट से निकलने से पहले उसने बज़ाहिर अपना रिवाल्वर चेक किया और उसे अलमारी में वापस रखते हुए ये उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर गिरा और इत्तेफाकन एक गोली चल गई जो उसे घुटने के नीचे लगी। भारी खून की कमी के दरमियान उसे केयरटेकर अस्पताल जुहू में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके घुटने के करीब से 9 mm की गोली निकाल दी। यह वाक़या कई सवालात को जन्म देता है। नाज़रीन, शिमला से बड़ी खबर आ रही। जी आज शिमला में फिर भगवा आतंकियों ने आतंक का नंगा नाच खेल कर रखा है और लगातार एक के बाद एक मस्जिद को निशाना बनाते जा रहे हैं। अभी एक जामे मस्जिद जो आज़ादी से पहले की है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अलग अलग अंदाज में एहतजाज किया, आंदोलन किया। खैर, शिमला से यह खबर आ रही है कि शिमला में अब 10 शनाख्त शुदा मकामात पर अवामी जलसों और मुजाहरों पर पाबंदी लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सिटी रिज और कैनेडी हाउस तक रेंडिसविस रेस्टोरेंट से रेवली सिनेमा तक, यानी कुछ मकाम है वहां पर, 150 मीटर का फासला तक, स्कैंडल पॉइंट से काली बारी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड, यानी कुछ ऐसे 10 मकामात है जहां पर अवामी जलसों पर भी बैन लगा दिया गया और इन इलाकों में मुजाहरे, आंदोलन और एहतजाज भी नहीं हो सकते हैं। हुकूमत ने, इंतजामिया ने वहां पर बैन लगा दिया है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि संजौली की मस्जिद के बाद में भगवा आतंकियों के हौसले बुलंद है और अब वो मस्जिदों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि ये अतिक्रमण है, ये नाजायज है, ये ऐसा है। अब MIM के एक वक्ता है जिन्होंने टीवी इंटरव्यू में साफ तौर से कहा कि सैकड़ों बल्कि 70% पार्कों में, गार्डन्स में अवैध मंदिर बने हुए हैं, लेकिन कभी किसी मुसलमान ने यह आवाज नहीं उठाया कि इस मंदिर को यहां से हटाया जाए या गिराया जाए, मगर भगवा आतंकी लगातार शरारत कर रहे हैं। रियासत महाराष्ट्र के नायब वजीर आला भी बिल्कुल घटिया किस्म की नफरतें फैलाने वाली रणनीति कर रहे हैं। फडणवीस ने लव जिहाद और वोट जिहाद का नाम लेकर तनाजा पैदा किया। एक्चुअल में बौखला गए। लोकसभा में जब मुसलमानों की इकट्ठी वोट पड़ी है और बीजेपी को जूते पड़े हैं, पूरे मुल्क में पड़े हैं, सिर्फ यहां नहीं, अयोध्या से इनको निकालकर राम जी ने फेंक दिया, तो अब ये बौखला गए हैं। अब महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो महाराष्ट्र में बाकायदा भगवा आतंकियों को खुलेआम छूट दी जा रही है। नीतीश राणे को खुलेआम छूट दी जा रही है कि जहर उगलते फिर, हर जगह हगते फिर, तुझे कुछ नहीं किया जाएगा, यानी ये इशारा है। और बल्कि फडणवीस ने नीतीश राणे को बचाने वाले बयानात भी दिए हैं। जी हाँ, यानी ये साफ लगता है, मेरी बात बिल्कुल सही है कि हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन से पहले दंगे फसाद हो, माहौल खराब हो और इसका फायदा फडणवीस शिंदे सरकार या बीजेपी को मिले। लेकिन हमने भी तय कर दिया है कि इंशाअल्लाह दंगे फसाद नहीं होने देंगे। खैर, फडणवीस ने घटिया बयान दिया है, लव जिहाद और वोट जिहाद का तस्करा किया है, जिससे तनाजा पैदा हो गया है और कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए ATM है,
मिनी मशीन को बचाने के लिए मोदी और शाह की आखिरी कोशिश है, क्योंकि महाराष्ट्र भी अब बीजेपी के हाथ से पूरी तरीके से निकल रहा है। इसलिए महाराष्ट्र को बचाने के लिए मोदी और शाह बड़ी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह महाराष्ट्र के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, बौद्ध ने, तमाम लोगों ने यह तय कर लिया है कि जो लोग लव जिहाद और वोट जिहाद और दंगे फसाद का माहौल बनाकर बाकायदा अंग्रेजों की राजनीति कर रहे घटिया डिवाइड एंड रोल की, इंशाअल्लाह उन्हें हम कामयाब होने नहीं देंगे। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं अडानी नाम का एक शख्स है जो किसी का आका है और उसी अडानी और अंबानी के लिए बाकायदा पूरे मुल्क को बेचा जा रहा है। लेकिन अब गरीबों की बस्ती धारावी, इसको भी निशाना बनाया जा रहा है और अपने अब्बा अडानी को देने की कोशिश की जा रही है। और अब खबर आ रही है, सचिन सावंत ने साफ तौर से कहा है कि अडानी के प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत के जरिए इंतजामिया को मजबूर किया जा रहा है। यानी फडणवीस और शिंदे हुकूमत यानी बीजेपी हुकूमत जो इंतजामिया है उनको मजबूर कर रही है। बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए SRA के जरिए गरीबों को उनके हुकूक से महरूम किया जा रहा है। रियासत महाराष्ट्र की राजधानी और मुल्क की तिजारती राजधानी मुंबई में बिल्डरों की मर्जी से SRA अवाम पर खुलेआम जुल्म कर रही है। ये एक संगीन मसला है और उसके खिलाफ रुकन पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ और हम सख्त जद्दोजहद करेंगे। हम हुकूमत की इस मनमानी को हरगिज नहीं चलने देंगे। ये वार्निंग कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सचिन सावंत ने दी है। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायां थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, इलेक्शन का दौर है और अब यह हरियाणा में प्रचार प्रसार है, कश्मीर का कुछ हिस्सा बाकी है। राहुल गांधी जबरदस्त अंदाज में बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और बीजेपी के जो आका है, फाइनेंसर है अडानी और अंबानी पर भी जोरदार अंदाज में राहुल गांधी हमला कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी का एक नया बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चंद सनअतकार यानी चंद बिजनेसमैन बेतहाशा पैसा अपने बेटों बेटियों की शादी में खर्च कर रहे हैं और यूं भी खर्च कर रहे हैं, जबकि मेरे मुल्क का आम शेतकरी, आम किसान बेटी की शादी के लिए भी कर्ज ले रहा है। हरियाणा में आइंदा असम्बली इंतखाबात के हवाले से तमाम सियासी जमातें जोरों शोर से अपनी तैयारियां कर रही है और रियासत हरियाणा में मुख्तलिफ इलाकों में रैलियों का सिलसिला जारी है। इसी दौरान कांग्रेस के दबंग नेता राहुल गांधी ने बहादुरगढ़ में एक रोड शो और अवामी जलसे से खिताब किया, जहां उन्होंने खासतौर पर किसानों और पसमानदा तबकात के मसाइल को उजागर करते हुए बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज में डूबकर अपनी शादियों का इंतजाम करते हैं, जबकि चंद बिजनेसमैन अंबानी जैसे शादियों पर करोड़ों खर्च करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये पैसा कहां से आता है, ये आपका पैसा है। मोदी जी ने ऐसा निजाम बनाया है जिसमें सिर्फ चंद खास 25 लोगों को पैसा जाता है, जबकि आम किसान अपनी बेटी की शादी के लिए भी कर्जा ले रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि लेबनान में भी इजराइल ने आतंकवादी हमला कर दिया और अब वहां पर भी हमारे कई भारतीय फंसे हुए हैं। खबरें आ रही है कि लेबनान में मुकीम रह रहे 4000 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। हुकूमत फिक्रमंद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। उम्मीद है कि जब उनसे बात की है भारतीयों को लाने की, तो ये भी कहा होगा कि नेतन्याहू अपना आतंकवाद बंद करो, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही है, आम इंसान सिविल सिटीजन्स मारे जा रहे हैं। हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से उनके आतंकवाद का भी जिक्र किया होगा। लेकिन बाद लोग कमेंट में कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हिम्मत हमारे नरेंद्र जी मोदी नहीं कर सकते हैं कि इतने बड़े आतंकवादी को वो ये कह सके कि भैया आतंकवाद मत करो। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी के जहरीले एमएलए जिनके अंदर किसी बिच्छू और कोबरा सांप और नाग से भी ज्यादा जहर है, हालांकि 1.5 फुट है, बगैर कुत्तों के बाहर नहीं निकल सकता है, 1.5 फुट है, मगर क्या करें, हुकूमत पूरी तरीके से संरक्षण दे रही है क्योंकि शिंदे और फडणवीस चाहता है कि जहरीला सांप जहर उगले,
मुल्क का, महाराष्ट्र का माहौल खराब हो और इलेक्शन में इसका फायदा मिले। फडणवीस ने तो जो इंटरव्यू दिया है उसमें साफ तौर से वो इस जहरीले सांप को बचाता हुआ नजर आ रहा है फडणवीस। खैर, नीतीश राणे अभी 2 दिन पहले परतवाड़ा में भी गया था। पहले परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन फिर बाद में परमिशन भी मिल गई। इसका मतलब यह है कि हुकूमत बाकायदा कलेक्टर पर, एसपी पर दबाव बना रही कि आने दो हमारे जहरीले सांप को, हमको जहर उगलवाना है इस 1.5 फुटिया से। तो खैर, अब इस नीतीश राणे के खिलाफ जलगांव की अदालत में फौजदारी मुकदमा दर्ज हो गया है। बताया जा रहा है कि अगली समाअत 3 अक्टूबर को होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रामगिरी महाराज और नीतीश राणे पर यह कोई नया मुकदमा नहीं है, इससे पहले भी जगह जगह इन पर केस दर्ज हो गए। सवाल यह है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इतनी बड़ी रैली इम्तियाज जलील ने निकाला, वहां तक गए, बंबई तक के हजारों लोग गए, लाखों रुपए का डीजल पेट्रोल खर्च हुआ, मगर क्या मिला? नीतीश राणे न गिरफ्तार किया गया, बल्कि रैली के 2 दिन बाद में परतवाड़ा में इस जहरीले शख्स को बाकायदा भाषण करने की इजाजत दी गई। यानी बताया गया इम्तियाज जलील को भी, एमआईएम को भी और तमाम मुसलमानों को भी कि इन जहरीले सांपों का फन हम नहीं कुचलेंगे, क्योंकि ये हमारे काम आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आप रैलियां निकालो या एहतजाज करो या मुकदमा दर्ज करो। आप इतना मजबूत एहतजाज करो या रैली निकालो कि जब तक के इन जहरीले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता आप जगह पर से नहीं हटेंगे। जैसे किसानों ने आंदोलन किया था, 1 साल तक वो जगह पर से नहीं हटे, 700 किसान शहीद हुए हैं। लेकिन क्या करें, मुसलमान इतना मजबूती से एहतजाज आंदोलन कर ही नहीं पाता है। बस सोडा बोतल की तरह जोश होता है और वो 1-2 दिन के अंदर ठंडा हो जाता है और बस। तो नीतीश राणे के खिलाफ जलगांव अदालत में फौजदारी मुकदमा दर्ज हुआ है। अगले समाअत 3 अक्टूबर को होगी। हम ये कहते हैं कि जिस दिन गिरफ्तार किया जाएगा उस दिन हम समझेंगे कि कामयाबी मिली है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।